I'm audible? Hello? Yes, sir. स्क्रीन दिख रहा है आपको? Yes, sir. Okay, चलो, very good then. Is the slide visible? जी. Okay, so let us continue from where we had left. So in the last class, we basically looked at what is a power system, why do we have to protect it, and what is a relay, and the types of relays and so on and so forth. So today we shall first of all look at circuit breaker, and then after that we'll probably look at the various fundamental types of protecting a power system. So first of all, what is a circuit breaker? कोई बोल सकता है? Anyone? Sir, a device which opens the circuit in case of abnormality. ठीक है, मतलब आपने कहा कि it opens circuit in case of abnormality. That's perfectly fine. To be precise, not just on abnormality, it can also open the device on load. मतलब हमारे पास device है, so maybe I should draw some kind of a circuit. Um, as a system है. I will draw a single line diagram. This is a generator, ठीक है? And यहाँ पर बीच में ट्रांसफॉर्मर है, एंड एक ट्रांसमिशन लाइन है, एंड देन वी हैव लोड. ओके, कौन है ये? So what we do is we put a circuit breaker here. ठीक है? So what happens normally is that the current flows like this. The current is supplied by the generator. It flows to the transformer. After it stepped down or stepped up, as the case may be, typically it's stepped up. The voltage is stepped up, so the current is stepped down. It then is loaded on the transmission line, and then finally this is fed to the load. ठीक है, ये हमारे पास normal current flow है. This is what is known as a radial system. मतलब इसमें खाली एक supply end है हमारे पास. We don't have multiple supplying ends. But anyway, क्या कौन कौन से types of systems होते हैं इंशाल्लाह हम देखेंगे. It may be the case that there is a short circuit somewhere. So for example, यहाँ short हो गया. ठीक है, there is a fall to ground. Maybe at this point. By the way, this is a single line diagram. Actually, हमारे पास खाली एक ही तार नहीं है. We have multiple wires. We typically have three wires or three phases. In the same way, the circuit breaker is not just connected to one phase. It is connected to multiple phases. Is that clear? What is the physical construction of circuit breaker? How is it connected to multiple phases? वो बाद में हम देखेंगे. At the moment, I'm just trying to understand the concept behind a circuit breaker. So if there is a short circuit, this current becomes very large. Okay? Because of this very large current, the generator may get burned out. The transformer obviously may get burned out. The transmission line may also be negatively impacted, and more importantly, these bus bars may also be negatively impacted. ठीक है? So हमको क्या करना है? We have to basically get rid of the short circuit current. Last class में हमने देखा था this function is basically performed using a relay. ठीक है? So what we can do is I basically give an example of an overcurrent relay. हमारे पास यहाँ पर एक रिले होगा. तो मैंने जगह ही नहीं रखी कहीं ड्रॉ करने की. एक्चुअली यहाँ पर रिले होगा. ठीक है, हमने लास्ट क्लास में देखा that there is something known as a current transformer which feeds a relay, and
if the relay finds that the current has become too large, it can give a signal to this thing here, the circuit breaker, to basically trip, to basically open. If it trips or opens, this current path is interrupted, and therefore the fault is denied access to a source. If it's denied access to a source, it will after some transient period die out. मतलब ये गायब हो जाएगा, यहाँ पर जो current flow है ना, it disappears. So जाहिर सी बात है, circuit breaker यहाँ क्या कर रहा है? It is interrupting the flow of a fault current. The fault current was flowing like this, and the circuit breaker under under command of a relay opens. ठीक है? When we say a circuit breaker opens, another word for opening is trip. ठीक है? So this is a very important function of a circuit breaker. But the circuit breaker can also be sometimes asked to open under open circuit, sorry, under load conditions as well. So हमारे पास कुछ ऐसा हो सकता है. Oops. ऐसा है, ऐसा है. Another bus, then we have a circuit breaker, then we have something like this. ठीक है, आपने देखा होगा कि हमारे पास, for example, especially in Kashmir, but also to a large extent in other parts of India, the generation capacity is oftentimes insufficient to meet the load, entire load all the time. So we go for load shedding. So ये हो सकता है कि ये circuit breaker को आप under normal load में भी open कर सकते हो. If you open it, this load here is disconnected. In other words, यहाँ पर जो हमारे पास load है ना, उसके electricity आप काट देते हो इस वाले केस में. So the circuit breaker therefore has to operate under two very dissimilar conditions. ठीक है, इसको under normal load current भी operate करना है, and it also has to operate under fault conditions. ठीक है, both operations आपके important है circuit breaker में. Is that clear? So again, that is not the end of the story. It ना सिर्फ ये कि इसको normal and fault conditions में open करना होता है, but the circuit breaker must be strong enough to have the capacity to close under normal and fault conditions. We will study all of that in detail. इसमें क्या problems होती हैं and so on and so forth. What is the construction and everything in detail. But at the moment, let's look at the definitions, I guess. It is a switch to interrupt the flow of current. It opens on a relay command. So it is basically a kind of a slave of a relay. ठीक है? You can think of the relay as the brain. Okay, एक second. Okay, this relay here is the brain, and the circuit breaker is a muscle. ठीक है? So जैसे if you want to perform some action, let's assume you want to walk. ठीक है? Now obviously the this action is walking. अब बोलोगे सर इसमें ब्रेन का काम क्या है? ब्रेन का काम उसमें सिंपली ये है कि जो आपके पैरों की मसल्स को जो कमांड देता है ना, दैट इज योर ब्रेन. मे बी आप उतना उसको वैसे बारे में सोचते नहीं हो, बट कोई भी ऑपरेशन अगर आपको परफॉर्म करना है, कोई भी एक्शन आपको परफॉर्म करना है, अल्टीमेटली द वन इन चार्ज इज द ब्रेन, बट द ब्रेन जस्ट इश्यूज कमांड्स. ठीक है, वो सिर्फ आपके जो पुर्जे हैं ना उनको हुक्म चलाती है किस्म से. फॉर एग्जाम्पल, इट कैन कंट्रोल योर लेग्स, it can control your arms, it can control your eyes. Everything is ultimately under the influence, or at least the control of the brain. But the actions themselves are not performed by the brain. Brain चल के कहीं नहीं जाता है, वो bowling नहीं कर सकता, वो मतलब गाड़ी नहीं चला सकता. These things ultimately are performed by your limbs, for example, but themselves under the influence of muscles. So this is the kind of relationship between circuit breaker and relay. A relay is a brain, circuit breaker is a muscle, a thing which actually performs action.
ठीक है. So this is an important thing. It can handle large voltages and currents. This is a very very important thing. So circuit breaker typically is connected to the power circuit. The currents and voltages are large. What is worse is because of this third point, we'll study this in detail, that under fault conditions, the currents are very large, but after the fault is interrupted, the voltage can become even larger. Why that is the case, and मतलब वो है इस वक्त तो नहीं हम जा सकते वहां पर. So ये जो हमारा सर्किट ब्रेकर है ना, इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है, that it should have the capacity to handle voltages and currents which are large. Compare that with the relay. Relay जो हमारा होता है ना, it is typically connected to a low voltage low current system. Is that clear? Maybe इसकी operating voltage है, I don't know, maybe it is say 110 volts. Maybe जो ये current ये draw कर रहा है, it can be a couple of amperes, perhaps 5 amperes. So जो अपना relay होता है ना, it is just a kind of a meter एक किस्म का. It is a kind of a control equipment or a protective equipment. इसको ये बड़ी currents and मतलब छोड़ो fault current, इसको normal current भी नजर नहीं आती है. The normal current in a power system basically depends on the मतलब आप कहाँ पर निकाल रहे हो करंट को, but it can extend maybe up to a few hundred or perhaps even 1,000 ampere. ठीक है, talking about normal current in a power system. इतनी बड़ी करंट कोई आपका प्रोटेक्टिव डिवाइस नहीं हैंडल कर सकता है, बिकॉज ये छोटे पेदे से होते हैं हमारे पास ये रिलेज ना, मतलब छोटा सा ये कोई डिब्बा जैसा होता है. मे बी इसका साइज कितना है, मे बी इसका वजन होगा मे बी 1 किलोग्राम समथिंग. साइज में भी आई डोंट नो इतना कि आप हाथ में उठा सकते हो. Typically, that is the size of a relay. These tiny equipment can't handle power system voltages and currents, and certainly they can't handle the extreme voltages and currents, which, as we will see, uh, can be exhibited by a power system under fault conditions. Okay? So they are categorized based on the interrupting medium used. जो हमारे पास सर्किट ब्रेकर्स होते हैं, they use a variety of media to interrupt this large current. The large current is the fault current. तो हमारे पास जो मीडिया होता है, मीडिया मतलब होता है मीडियम, ठीक है, जिसके थ्रू ये करंट इंटरप्ट होती है. We typically have air circuit breakers, we have oil circuit breakers, we have vacuum circuit breakers, we have SF6 circuit breakers. ये हमारे पास 4 important types of circuit breakers हैं. Increasingly, we'll find for applications maybe greater than 33 kV, we use what are known as SF6 circuit breakers. SF6 आपने पढ़ा होगा ये, तब कम से कम केमिस्ट्री में क्लास 11th या 12th में. This is sulfur hexafluoride. This is a very important circuit breaker. We use also what are known as air circuit breakers. इसके भी internally 2-3 type हैं. We use oil circuit breakers. ठीक है, and we use especially in rural areas for applications maybe up to 33 kV or perhaps 66 kV, what are known as vacuum circuit breakers. This is very commonly used in rural areas. Rural area means gaon dehat. Why that is the reason and so on and so forth. Obviously this is the introduction जो हम स्टडी कर रहे हैं इस वक्त. तो अभी तो ये मुमकिन नहीं कि मैं आपको इसकी डिटेल वगैरह बोलूं. इंशाल्लाह मे बी towards the end of the course we will take up the study of circuit breakers. ठीक है, so कर लिया हमने summary खत्म. हमने देखा why is a protective system required, what are the types of protection, what are the types of relays, and finally circuit breaker का role क्या है, what function does it perform in a power system. ठीक है, so let me close this and let's move on to lecture number 2. ठीक है, again courtesy of Professor Soman. So we have actually the name of the lecture is protection paradigms. ठीक है, last time मैंने आपको बोला था कि basically we have 2 kinds of things to worry about in a if you are working as a protective system engineer. You have to worry about the well-being of individual devices, and you also have to worry about the overall system. ठीक है, उसकी well-being क्या है. So let's start with the well-being or protection of individual devices. क्या क्या तरीके होते हैं जिससे आप individual devices को protect कर सकते हो.
maybe in the last class हमने थोड़ा बहुत ये पढ़ा था what is a overcurrent protection. ठीक है. Uh, we will वैसे हमारे पास एक और होता है, it's known as distance protection, and then we have differential protection. These are the three most important types of most important methodologies, most important ways in which equipment typically is protected. Equipment can be transformers, equipment can be transmission lines, it can be generators, it can be motors, it can be bus bars, it can be anything. ठीक है. अब जो ये वाला हमारे पास स्लाइड है, हो सकता है कोई कोई चीज आपको ना थोड़ी अजीब लगे, सो यू बेसिकली प्लीज बेयर विद दैट, क्योंकि हमें ये सारी चीजें डिटेल में पढ़नी है. यहाँ पर बेसिकली ना एक ओवरव्यू यहाँ दिया गया है कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप चीजों को प्रोटेक्ट कर सकते हो. टू गिव एन एनालॉजी, प्रोटेक्टिव सिस्टम क्या करता है, फॉल्ट अगर आता है उसको एट मिनिमम टाइम उसको आप रिमूव करते हो. अल्टीमेटली प्रोटेक्टिव सिस्टम वही करता है. To do that, we can have different ways of executing that. Just like अगर खुदा ना खास्ता आप बीमार पड़ गए, ठीक है, आपकी बीमारी का इलाज जो होता है ना उसके बहुत सारे तरीके होते हैं. So for example, if you go to different doctors, they may basically it may be the case that depending on your age, on your gender, ठीक है, on your health, depending on other comorbidities that you may have, जो आपका डॉक्टर होता है ना, he or she rather may specify different medicines. In the same way मुझे किसी याद ही नहीं दिलाया इसकी रिकॉर्डिंग करो. खैर एक सेकेंड, रिकॉर्ड मीटिंग. In the same way, depending on the equipment that we are thinking about, depending on the location and the importance of equipment, we basically use different ways of protection. So let's start with the most basic kind of protection, which is overcurrent. So what is principle of overcurrent relay? यहाँ पर एक simple हमारे पास एक radial distribution system दिया हुआ है. What is a radial? Any system which has a single source is defined as a radial system. ठीक है. So हमारे पास सिर्फ under normal conditions there is only one direction in which the current can flow, and it can flow only from one source. ठीक है. Normally there is a load here. ठीक है. यहां पर भी लोड हो सकता है, यहां पर भी लोड हो सकता है. All these loads are supplied by a single source point. यहां से करंट फ्लो होती है, यहां से करंट फ्लो होती है, यहां से करंट फ्लो होती है. टू बी प्रिसाइज, आपको पता है जो हमारे पास करंट होती है दैट इज एन एसी करंट. उसकी डायरेक्शन मतलब उतना मायने नहीं दे रखती है. When I'm talking about current flow direction or current direction whatever, I am basically talking of power direction or power flow. ये जो हमारे पास systems हैं, the power always under normal conditions flows from left to right. ठीक है. इसमें और कोई तरीका नहीं है, मतलब right to left power flow हो सकता है. ठीक है. So this is a radial system. What is the principle of an overcurrent system? It's very simple. When the current in a system exceeds a predetermined value, जो हमने last class में देखा था, it indicates the presence of a fault. ठीक है. So let's go to the Jamboard. So simple हमारे पास जो relay होता है इसके अंदर, it executes a simple logic. If current magnitude is greater than pickup value, ठीक है. लास्ट क्लास में हमने देखा था पिकअप वैल्यू इज द मिनिमम करंट फॉर विच अ रिले ऑपरेट्स. ठीक है. इफ करंट वैल्यू एक्सीड्स द पिकअप वैल्यू देन द कमांड इज ट्रिप. ट्रिप का मतलब है खुद ट्रिप नहीं होता है, सर्किट ब्रेकर को बोलता है ट्रिप हो जाओ. एल्स होल्ड. होल्ड का मतलब है जैसे थे वैसे रहो. Is that clear? This is the basic logic executed here. अगर आप किसी ओवर करंट रिले को खुलाओगे, it can be an electromechanical relay, it can be a computer based relay.
इन द केस ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड रिले उसमें एक्सप्लिसिटली हम ऐसे स्टेटमेंट्स लिखते हैं, मतलब ना उसमें बेसिकली उसको प्रोग्राम करते हैं किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, वहां पर ऐसे स्टेटमेंट्स आपको नजर आएंगे, मे बी सिंटैक्स ऐसा नहीं होगा, डिपेंड्स ऑन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड, बट लॉजिक यही होगा। करंट का मैग्नीट्यूड अगर किसी वैल्यू को एक्सीड करेगा तो ट्रिप करना, अदरवाइज होल्ड करना, ठीक है। इन द केस ऑफ एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल रिले ये इनडायरेक्टली किया जाता है, कैसे किया जाता है वो हम देखेंगे डिटेल में, वहां कोई कोड वगैरह नहीं होता है, बट यही एल्गोरिथम इंप्लीमेंट होती है वहां पर भी। सो एनीवे, अगर आप देखोगे, द ओनली थिंग दैट यू आर सेंसिटिव टू इज द करंट मैग्नीट्यूड, कोई बाकी चीज आप देख ही नहीं रहे हो। इज दैट क्लियर? बाकी चीज क्या होती है? सो विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस, द एसी करंट इज नॉर्मली रिटन एज अ फेजर, ठीक है, मे बी ये मैं इसको एज अ फेजर लिखूंगा, कैपिटल आई, ठीक है। जो फेजर होता है ना उसमें हमेशा दो इंफॉर्मेशन कंपोनेंट्स होते हैं, या दो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स होते हैं जिनके अंदर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, जिससे आपका फेजर डिफाइंड होता है। वन इज अ मैग्नीट्यूड, द अदर इज अ फेज, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस। यूजुअली लोकली जो हमारे पास वोल्टेज होती है ना उसको हम जीरो डिफाइन करते हैं, उसका फेज हम डिफाइन करते हैं जीरो, विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज हम करंट का रेफरेंस मतलब फेज लेते हैं, व्हाटएवर। सो अगर मैं इसको प्लॉट करूंगा, इसको I at an angle of zero on the complex plane, I would see something like this. Oh, let me wipe this off. ठीक है, टिपिकली जो हमारी लोकल करंट होती है वो लैगिंग होती है, बट इट कैन बी लीडिंग एज वेल, ठीक है। सो ये जो हमारे पास, दिस इज द कॉम्प्लेक्स प्लेन, दिस इज रियल एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। वहां पर हमारे पास जो ये करंट होती है ना इसका एक मैग्नीट्यूड होता है विच इज द लेंथ ऑफ दिस वेक्टर, और जो फेज होता है ना बेसिकली ये है, यहाँ पर फेज नेगेटिव है, इसकी लोकेशन क्या है? Is it in the first quadrant? Is it in the third quadrant? Is it in the whatever quadrant? और exact location क्या है quadrant के अंदर? Is that clear? So यहाँ पर जो ये second information component है, phase information, we don't use that. In overcurrent relaying, or at least normal overcurrent relaying, I will qualify that expression, what is normal overcurrent relaying. We do not use the phase information, we merely use the magnitude information. Is that clear? So let's go back to this. जो हमारे पास ओवर करंट रिलेइंग सिस्टम्स होते हैं और जो हमारे पास नॉर्मल फ्यूज होता है ना घर के अंदर, या हायर पावर रेटिंग के फ्यूज भी होते हैं, वो यही प्रिंसिपल यूज करता है। फ्यूज क्या करता है? करंट उसमें फ्लो होती है, ठीक है, अगर करंट एक्सीड करती है किसी पर्टिकुलर वैल्यू को, फ्यूज उड़ जाता है। फ्यूज उड़ जाने का मतलब है इट मेल्ट्स, इट ओपन्स। इफ इट मेल्ट्स एंड ओपन्स, द करंट इज ब्लॉक्ड। In the case of overcurrent relaying, we basically implement this logic, जो मैंने यहाँ लिख लिया। रिले खुद मेल्ट वेल्ट नहीं होता है, खाली वो कमांड देता है सर्किट ब्रेकर को कि तुम भी मेल्ट ना हो जाओ लेकिन तुम ओपन हो जाओ। इज दैट क्लियर? सो ओके, इट इज वेरी कॉमनली यूज्ड इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स। जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स होते हैं ना, मतलब जहाँ जो आपका मे बी के कहाँ गया मैं, जो ये लाइंस है ना, जो ये लोड्स है, मैं कहीं और बना लेता हूँ ये कुछ चलो। For the sake of simplicity, I'm only drawing two load buses here. ठीक है, ये हमारे पास बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, ठीक है। मे बी दिस इज 33 kV जो लाइन हमारे पास है, ठीक है। सो उसके बाद क्या होता है, ये हमारे पास ये जो यहाँ पर लोड्स मैं दिखा रहा हूँ ना, मे बी ये अलग अलग हिस्सों में बायफरकेट होंगे,
यहाँ पर ये ऑन दिस साइड 11 केवी है। अगर आपने देखा होगा ये आपके होम्स की तरफ जा रहा है। अब मैं वो उसकी कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, मैं सिंपली यहाँ वर्ड यूज कर रहा हूँ होम। हमने लास्ट क्लास में देखा था वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स, बेसिकली थ्री काइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स होते हैं। वी हैव commercial consumers, we have industrial consumers, and then we have domestic consumers. So यहाँ पर मैंने डोमेस्टिक दिखाया, बट द सेम प्रिंसिपल अप्लाइज टू अदर काइंड्स ऑफ कंज्यूमर्स एज वेल। उनको लोकल सप्लाई करने के लिए हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है, एंड दैट इज टिपिकली रेडियल। ये नहीं कि मतलब यहाँ पर एक और मेरे पास जनरेटर है जो सप्लाई कर रहा है, नहीं, आपके पास खाली एक सोर्स ऑफ सप्लाई है। सो आपके पास जो पावर फ्लो है उसको आप पहले पावर को स्टेप डाउन करते हो टू 33 केवी, उसके बाद वो रेडियली यहाँ की तरफ जाके आपके होम तक पहुंचता है आफ्टर बीइंग स्टेप डाउन अगेन टू 11 केवी। घर पे नहीं जाता है एज एन 11 केवी। घर में आपने देखा होगा मतलब घर में मींस इन योर लोकेलिटी यू वुड हैव सीन दैट देयर इज अनदर ट्रांसफार्मर। मैं उसको दिखाता हूँ। उसका जो एचवी साइड होता है दैट इज 11 केवी, ठीक है, एंड जो उसका एलवी साइड होता है दैट इज मे बी 400 वोल्ट, समथिंग लाइक दिस। मैं लाइन वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, विच in the line to neutral voltage is around 220 230 volts, जो आपको line to neutral voltage usually घरों के अंदर मिलती है। But you can have a situation especially for large loads in which the three phase voltage is provided, मतलब तीनों phase उसको दिए जाते हैं। If the loads are even larger, we dispense with the 400 volts, हम directly इसको 11 kV देते हैं। For example, many industrial consumers are supplied at 11 kV. So anyway, ये जो हमारे पास नेटवर्क है ना, इट इज रेडियल। इसमें कोई मतलब ये नहीं है कि आपको मल्टीपल जनरेटर है, एक ही सप्लाई है। वहां से आपको सप्लाई पॉइंट से करंट फ्लो यहाँ भी जा रही है, करंट फ्लो यहाँ भी जा रही है। वेरी कॉमनली यहाँ पर हम करते हैं यूज ओवर करंट प्रोटेक्शन एट मल्टीपल लोकेशंस। फॉर एग्जांपल प्रोटेक्शन ऑफ दीज ट्रांसफार्मर्स जो यहाँ पर 33 केवी को स्टेप डाउन कर रहे हैं। प्रोटेक्शन ऑफ दीज लाइंस, यहाँ पर ये लाइन जा रही है ना, जो अल्टीमेटली आपके इस क्या नाम है इसका, इस ये आपका मान लो ये लोकल स्टेशन है जहां से ये 11 केवी लाइन निकल रही है ना, जो आपके मोहल्लों तक पहुंच रही है। आपको मोहल्ले में कभी 33 केवी लाइन नहीं मिलेगी, मतलब कम से कम मोहल्ले में आप कभी एक्सेस नहीं कर पाओगे उसको। सो ये मल्टीपल लोकेशंस में हमने सर्किट ब्रेकर लगा के रखे होते हैं। क्या कॉन्फ़िगरेशन है, डिटेल वगैरह हम बाद में पढ़ेंगे, बट यहाँ पर बहुत ही कॉमनली हम यूज करते हैं ओवर करंट प्रोटेक्शन। सो जस्ट लाइक इसमें बहुत कॉमन होता है फ्यूज प्रोटेक्शन भी हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर। अब फ्यूज में यूजुअली हम इंडस्ट्रियल या मतलब घर के इक्विपमेंट के लिए यूज करते हैं फॉर मे बी अप टू 11 केवी, परहैप्स 33 केवी लेवल। बहुत ही सिंपल इक्विपमेंट है, आप लोगों ने सबने देखा है, सो आई विल नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन इट। सो या बहुत ही कॉमन है हमारे पास ओवर करंट प्रोटेक्शन। देन वी हैव व्हाट इज नोन एज डायरेक्शनल ओवर करंट प्रोटेक्शन। यहाँ पर हमारे पास है, इट इज अगेन अ रेडियल सिस्टम, लेकिन इट इज अ डबली फेड सिस्टम जिसको हम कहते हैं। अगर आप इस सिस्टम को देखोगे, देयर इज ओनली वन पाथ फॉर अ ट्रांसमिशन लाइन, बट देयर आर टू डायरेक्शंस ऑफ करंट फ्लो। ओके, कोई आने की कोशिश कर रहा है। ओके, सो लुक एट इट हियर। हमारे पास एक ही पाथ है फॉर अ करंट फ्लो। पाथ का मतलब है रास्ता, but there are two ways of moving or moving power on that path. So हमारे पास अगर आप देखोगे, we have two generators or at least two effective generators or two effective sources of power, ठीक है। so यहाँ से पावर फ्लो आ सकता है, बल्कि आता है, यहाँ से पावर फ्लो आ सकता है, ठीक है। so if I look at this line section BC, ठीक है, अंडर नॉर्मल कंडीशंस हो सकता है पावर फ्लो है फ्रॉम सी टू बी, या ये भी हो सकता है पावर फ्लो इज फ्रॉम बी टू सी। ये बेसिकली डिपेंड करेगा कि ये इसकी लोकेशन क्या है, एंड मतलब ये जो इंडिविजुअल यहाँ पर सोर्स ऑफ पावर है वो कितना पावर फ्लो करा रहे हैं, मतलब कितना पावर फीड कर रहे हैं सिस्टम के अंदर। द सेम अनफॉर्चुनेटली इज आल्सो ट्रू फॉर ए फॉल्ट एज वेल। सो लुक एट दिस सिस्टम। ये जो अपना सिस्टम है ना, F1 की बात मैं कर रहा हूँ, there is a fault created here, ठीक है।
because of fault, the currents throughout the system become very large. Is that clear? So देखो क्या होता है, ये जो आपके पास करंट है ना, शॉर्ट सर्किट करंट, इट इज फेड बाय दिस सोर्स, इट इज आल्सो फेड बाय दिस सोर्स. बाय द वे ये जो F2 है यहाँ पर नहीं है, खाली F1 है यहाँ पर एट द मोमेंट. सो आप यहाँ पर देखो R1 का बिहेवियर क्या होगा when it sees a fault F1 and when it sees a fault F2. पता नहीं इसने क्यों F1 पहले लिखा है. लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट F2. ठीक है, F2 आपको अगर फॉल्ट आ गई, द करंट F जो फॉल्ट करंट होती है, दैट्स वेरी लार्ज. इट इज फेड from this side, it is also fed from this side. Why fed from both sides? क्योंकि हमारे पास दो सोर्स ऑफ सप्लाई है. ये सप्लाई भी इस करंट को फीड करती है, ये सप्लाई भी इस करंट को फीड कर रही है. सो अगर आप इस रिले, यहाँ एक्चुअली रिले 1 का मतलब है दिस R1 इज कंट्रोलिंग दिस सर्किट ब्रेकर, जो ब्लू कलर का यहाँ बना के है. इसको बहुत ही हाई करंट नजर आती है तो ये ट्रिप हो जाता है. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस ट्रिपिंग, ये जो हमारे पास लाइन सेक्शन है AB, दिस इज आइसोलेटेड. इफ दिस सर्किट ब्रेकर आल्सो ट्रिप्स, ये भी ओपन हो गया, ये भी ओपन हो गया, ये पूरा का पूरा लाइन सेक्शन खत्म हो गया. ऑन द अदर हैंड व्हाट हैपेंस हियर, अगर यहाँ पर आपके पास फॉल्ट करंट होता है, F1 की बात मैं कर रहा हूं, आपको अगेन फॉल्ट करंट ऐसे फ्लो होगी और ऐसे फ्लो होगी. So I will again concentrate on this relay, ये जो यहाँ पर है R1, उसको again एक बहुत ही large fault current नजर आ रही है. I'm talking of R1 here. Because the current is large and if I was just using overcurrent protection, जो normal overcurrent protection होती है, वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर ये जो R1 है ना, इसको बहुत large fault current नजर आती है. ठीक है, बहुत large fault current नजर आती है, because of which ये उड़ जाता है बेचारा. उड़ने का मतलब ये है कि ये अगेन ट्रिप करेगा. अगर ये ट्रिप करेगा, अगेन लाइन सेक्शन AB भी आइसोलेट हो जाएगा. लेकिन एक्चुअली आइसोलेट होना चाहिए था मिनिमम जो कंपोनेंट है आपके पास. फॉल्ट यहाँ पर है लाइन सेक्शन BC में, लेकिन ट्रिप आपका हो सकता है लाइन सेक्शन AB में. ठीक है, सो यहाँ पर किसी ना किसी तरीके से आपको ये डायरेक्शन इंफॉर्मेशन फीड करनी होती है. आगे हम देखेंगे डायरेक्शन इंफॉर्मेशन का मतलब है ये जो आपके पास करंट फ्लोज है ना, उनका फेज इंफॉर्मेशन भी आपके रिले को फीड करना होता है. हाउ दैट इज डन वी विल स्टडी इंशाल्लाह इन डिटेल. बट यही बेसिक प्रॉब्लम ये है कि अगर आपके पास इवन इन अ सिंपल सिस्टम जिसमें दो सोर्सेज हैं, वहां पर नॉर्मल डायरेक्शनल रिले काम नहीं कर सकता. इज दैट क्लियर? सॉरी, नॉर्मल ओवर करंट रिले काम नहीं कर सकता. So the next paradigm is what is known as distance protection. This is very important. It's very commonly used in transmission lines. You will find that almost all important transmission lines operating at voltages of say more than 132 kV, maybe 220 kV, 400 kV, 760 kV. वहां पर हम ये डिस्टेंस प्रोटेक्शन यूज करते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रांसमिशन लाइंस और ट्रांसमिशन नेटवर्क में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसका प्रिंसिपल तो बहुत ही सिंपल है. The principle is that the apparent impedance seen by the relay reduces drastically in the case of a fault condition. ठीक है, ओके ओके, कहाँ गया ये? यहाँ देखो आप. ठीक है, लेट्स अज्यूम ये फॉल्ट यहाँ पर नहीं है. ठीक है, आप क्या कर रहे हो, seeing from this point onto the line, आपको क्या impedance नजर आती है? आपको impedance पहले नजर आती है. Again, I am talking of a pre-fault condition here. इंशाल्लाह आवाज आपको आवाज आ रही है? हेलो, am I audible? Yes, sir. ओके ओके. सो अगर आपकी आवाज कट गई तो मुझे बता देना. ठीक है, सो देखो यहाँ लॉजिक क्या है. हम यहाँ पर किसी तरीके से प्री फॉल्ट और पोस्ट फॉल्ट इंपीडेंस को कंपेयर कर रहे हैं. इंपीडेंस, ठीक है, वी विल सी लेटर ऑन व्हाई. लेटर ऑन क्या मतलब विद इन 5 मिनट्स के इसको हम क्यों कहते हैं डिस्टेंस प्रोटेक्शन. बट हॉल ऑफ कॉन्सेप्ट समझो. लुकिंग ऑन फ्रॉम दिस साइड, ठीक है, जो मैंने एरो जैसा बना के रखा है, हम देखते हैं कि इसको इंपीडेंस क्या नजर आती है. ठीक है, आप इमेजिन करो, आप यहाँ से पॉइंट A से आपने ग्राउंड तक अपना कनेक्शन किया, मतलब आप चले
और तब तक चलते गए जब तक आपको ग्राउंड नजर नहीं आया. So first of all, as I move from point A, looking on to the right side, not to the left side, ठीक है, मेरे को पहले line section नजर आएगा AB. This is the transmission line maybe. The length of this transmission line can be anything. We know that the impedance is Z line. ये जो हमारे पास impedance है, it is mostly series impedance. इसमें shunt impedance भी हो सकती है, ठीक है. When I then move from a B onto ground, I will see a load impedance. So maybe I will draw a diagram. I will draw a single line reactance diagram. ठीक है, this is supply. ठीक है. So looking at the system at this point, let's call this point A and this point is B. ठीक है, I am looking into the transmission line. ठीक है, normally क्या होता है, maybe I will use something like this. जो आपके पास power होता है, it flows like this. It exits the generator, it then flows on the transmission line and then goes into the load. ठीक है, let's assume this impedance is Z, which is the load impedance. ठीक है, ये जो हमारे पास लाइन होती है, इट इज मोस्टली इंडक्टिव. जाहिर सी बात है, इसका एक रेजिस्टिव कंपोनेंट भी होता है which denotes the power loss. इसमें शंट कंपोनेंट भी हो सकता है. फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी मैंने खाली यहाँ रिएक्टेंस दिखाई हुई है, ठीक है. सो ये जो हमारे पास है, लेट्स कॉल दिस Z line. This is the impedance of the line. So under normal conditions, जो आपका ये मतलब कैसे आप देखते हो, we will see later on. ये जो आप यहाँ पर इम्पीडेंस देख रहे हो ना, इम्पीडेंस का क्या मतलब होता है, ये जो हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज है, लेट्स कॉल दिस करंट के कौन गया, एट दिस बस इफ द वोल्टेज इज V and the current into the transmission line जिसको आप मॉनिटर कर रहे हो, that is I. Under normal conditions, this V by I, normal का condition का मतलब है there is no fault, ठीक है. This is equal to, जो अगर आप देखोगे, this is a series connection, it is equal to a line impedance plus load impedance, ठीक है. So अगर आप इस नेटवर्क को देखोगे A to B to ground, under normal conditions, if you measure the voltage, by the way this is phasor, ये खाली मतलब magnitude नहीं है. If I measure the voltage and if I measure the current, the ratio voltage to current is basically the impedance of this network on the right hand side, ठीक है. Under normal conditions, this impedance is pretty large क्योंकि आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन है. एक तो पूरी की पूरी लाइन की impedance आ जाएगी प्लस लोड की impedance आपको आ जाएगी. What will happen under fault conditions? अगर मैंने यहाँ शॉर्ट कर लिया, ठीक है, there is a short circuit here. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल if there is a short circuit here, ये जो यहाँ पर वाला नेटवर्क है ना, यहाँ करंट फ्लो कितनी है? On the right hand side of the, why? Current chooses the least resistive part. हाँ वो ठीक है. कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर? अगर आप देखोगे ना, करंट फ्लो तब होती है when there is a voltage drop, otherwise there is no current flow. On this point the voltage is zero क्योंकि आपने ग्राउंड किया ना, इसको अर्थ किया यहाँ पर. यहाँ पर भी वोल्टेज जीरो है. सो ये जो हमारे पास हिस्सा है ना, starting from this point up to this point, it does not see any voltage drop, it does not see any driving voltage. तो करंट कहाँ से आएगी? So यहाँ पर the current becomes zero, the current disappears. आपका जो at least in this simple system in which
we have only one source of supply, radial system with a single supply. And ये जो हमारे पास fault है, it is a perfect short circuit. Practical system is somewhat different, but let's look at this system for the moment. So अगर आप यहाँ देखोगे ये जो current है ना, I will call this a fault current. वो A को exit करती है, बस A को, line जो आपकी है उसके एक छोटे से part, maybe let's assume it sees only X fraction of your line, उसमें flow होती है, and then it goes into the ground. Is that clear? उसका मतलब ये है कि ये था आपके पास, this is Z normal. What is the impedance seen under fault conditions? ZF, it is equal to V fault divided by I fault. ठीक है? Again, V fault का मतलब है voltage at this point when there is a fault. I fault का मतलब है current flow exiting rather bus A under fault conditions. वो किसके बराबर है? अगर आप अगेन सेम प्रिंसिपल आप यूज करो, मैं पॉइंट ए टू ग्राउंड देखूंगा कितनी इंपीडेंसेस मुझे नजर आती है, क्या नजर आता है मुझे? आई सी ओनली अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, मुझे बाकी हिस्सा नजर ही नहीं आता, बिकॉज देयर इज नो करंट फ्लो हियर. यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं, यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं. So if the impedance from point A to point B is Z line and I see only X fraction of the line, ये impedance किसके बराबर होगी from uh, this point to this point? शाबाश, कितनी होगी? Anyone? X times Z line. X times Z line. Obviously. So this impedance here is X times Z line. Remember, X is, इसका maximum value क्या हो सकता है? X का कोई बोल सकता है? 1. 1 obviously. Minimum value 0 भी हो सकता है ना, अगर fault आपको बस पे ही आ गया. अगर fault यहाँ पर है, then at least in this case you don't see any impedance. अगर fault यहाँ पर है, ठीक है, आपको पूरी की पूरी line में fault flow हो रहा है. So this X can vary from 0 to 1. But in either case, अगर आप कंपेयर करोगे ना fault impedance को with respect to normal impedance, which one is larger or are they same? Sir, repeat कीजिए, कट गई आवाज. Oh, sorry. If I compare the fault impedance with normal impedance means the impedance as seen by this relaying equipment at this point A, ZF बड़ा है कि Z norm बड़ा है, or are they same? Z normal बड़ा है, ZF कम है. Why? Because ZF में एक fraction है सिर्फ Z line का, Z normal में load भी है और पूरी line है. हाँ हाँ, शाबाश. So अगर आप देखोगे, look at the impedance as seen at this point A, under normal conditions, we see the entire transmission line, plus we see the load as well. But under fault conditions, the load information is lost and most of the transmission line information is lost. So हमारे पास खाली एक fractional हिस्सा नजर आता है. So instead of comparing currents, if I compare these impedances, मैं वो भी use कर सकता हूँ ना. So यहाँ पर simple logic ये है. Anyway, इसके भी 2-3 variant है, but I will again use the simplest. If Z seen, Z seen का मतलब है जो impedance आपको नजर आ रही है, voltage divided by current. If magnitude of this falls below some pickup value, operate, यानी कि trip. Else, hold. So what is the difference between this and the overcurrent relaying that we have been studying? Instead of using the current information directly, I use both voltage as well as current information. Okay, if I have to produce impedance, I have to basically find out what is voltage, then I have to find out current. उनका मेरे को divide करना पड़ेगा. So in order to implement distance relaying, we need both voltage as well as current information. So compare that with overcurrent relaying where we need only current information और कोई information हमें नहीं चाहिए. So हम यहाँ क्या कर रहे हैं? Simple है. अगर impedance at a point as seen at a point
voltage divided by current at some point. If it falls below some critical value, we presume that there is a fault somewhere, and then we instruct this circuit breaker. यहाँ मैंने दिखाया नहीं है, मैं दिखा लेता हूँ. Maybe there is a circuit breaker here. There will also be, by the way, a circuit breaker here. मैं इस circuit breaker को बोलता हूँ जो यहाँ पर relay है कि तुम trip हो जाओ. Is that clear? I issue a trip command to this circuit breaker. So I have basically shown that here. If impedance as seen at some location falls below some value, we order the circuit breaker to trip. Otherwise, हम उसको कहते हैं continue करो. Now, why do we call it a distance protection? Again, if I know the parameters of the system, मेरे को पता है कि मेरा load impedance कितना है और मेरे को पता है more importantly what is the transmission line impedance. So, for example, if I know the value of Z line, if I know the value of fault impedance, अगर आप इस equation को देखोगे ना, fault impedance is X times Z line. So I can write it here. Okay, Z fault. Okay, sorry, this is not a pen. Z fault जो आपके रिलेइंग प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को नजर आ रहा है, आपके रिले को नजर आ रहा है, this is equal to X times Z line. In other words, X is equal to Z fault divided by Z line. ठीक है? ZF is the fault impedance जो आपको नजर आती है under fault conditions. Z line is the line impedance. X क्या है? X is the distance between point A or bus A and the location of the fault. इसलिए इसको हम कहते हैं distance protection. Is that clear? ये आपको न सिर्फ इसके जरिए से आप बोलोगे सर इसका फायदा क्या है? एक बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है कि जो आपकी जो रिलेइंग इक्विपमेंट होती है ना, अगर आप उसको स्टडी करोगे, आपको न सिर्फ ये पता चलेगा कि फॉल्ट हो गया है, मतलब शॉर्ट हो गया है कहीं पर या कुछ, आपको यही पता चलेगा कि कहां पर फॉल्ट है. सो इफ आई नो द वैल्यू ऑफ एक्स, मेरे को पता है फॉल्ट यहाँ पर है. It is at a location of X kilometers or whatever. It may be not kilometer. It can be say अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक length है 10 kilometer, उसका कितने fraction पे आपका fault आ रहा है. So you need know the location of the fault as well. Is that clear? Why is that important? Basically, जो location of fault है ना, उसके जरिए से आप अगर इसको रिपेयर की आपको जरूरत पड़ गई, वो भी आप यूज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, रिपेयर का मतलब ये है कि लेट्स अज्यूम ये जो हमारे पास फॉल्ट है ना, ये हो गया था क्रिएट क्योंकि यहाँ पर एक आई डोंट नो कोई टाइप का यहाँ पर कोई लैंडस्लाइड हो गई या व्हाटएवर अर्थक्वेक था, उसकी वजह से एक पेड़ गिर गया आपकी ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर, समथिंग लाइक दैट. मोटा सा पेड़ या मल्टीपल पेड़ गिर गए. यह हो सकता है यहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन कट गई और ग्राउंड को उसने टच कर लिया. होता है ना कभी कभी, जैसे बर्फ पड़ गई, because of excessive snow loading, ice loading, transmission lines get snapped. कभी कभी ये होता है कि जो हमारे पास wind loading होती है, हवा बहुत तेज चल रही है, उससे भी transmission line आपकी कट के ग्राउंड पे गिर सकती है. So 1000 things can happen. अब ये तो कोई ट्रांसमिशन लाइन तो जिंदा नहीं है कि वो आपको बोलेगी कि मेरे को लग रही है यहाँ पर, या मैं यहाँ कट गई हूँ, या मेरे को यहाँ ग्राउंड है. ये आपको इन्फर करना पड़ता है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन ऑफ दैट योर रिले स्टडी. सो चूंकि यहाँ पर हमारे पास जो रिले जिस पे ऑपरेट करता है, दैट इज इम्पीडेंस एज अपोज टू करंट, मेरे को ऑटोमेटिकली पता है कि यहाँ पर लोकेशन क्या है फॉल्ट की. तो जब मैं सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करता हूँ, उसके बाद जो आपका मैं यानी कि जो मैं सिस्टम ऑपरेटर हूँ, मैं कोई रिपेयर क्रू को भेज सकता हूँ कि देखो तुम एक काम करो, अगर ये लेट्स अज्यूम यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 किलोमीटर्स है एंड एक्स आपको मिल गया 0.1, तो मैं इसको बोलूंगा तुम एक काम करो, लेफ्ट टू राइट तुम 1 किलोमीटर जाओ, वहां पर फॉल्ट है, वहां पर मे बी वहां आके हमको पता चलेगा कि ट्रांसमिशन लाइन कट गई है या उस पर कोई पेड़ गिर गया है या कुछ भी हो गया है, तो मैं रिपेयर वर्क कर सकता हूँ. ठीक है. सो मेरे को क्योंकि ट्रांसमिशन लाइन बहुत ही लंबी है, ये तो नहीं है ना कि मेरे को इफ आई एम सिटिंग एट पॉइंट ए, मेरे को हर एक नजर आ रही है. आई एम नॉट एबल टू सी ऑलमोस्ट 99% ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन. डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन.
मुझे फॉल्ट लोकेशन इन्फर करनी पड़ती है इन ऑर्डर टू सेंड अ रिपेयर क्रू और अ मेंटेनेंस क्रू एज द केस में बी. सो ये इंफॉर्मेशन भी आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हो इफ आई यूज दिस टेक्निक. इंस्टेड ऑफ यूजिंग करंट डायरेक्टली आई विल यूज करंट इनडायरेक्टली. कोई शाबाश, मुझे कोई कह सकता है ये तो अभी तक मैंने फायदे आपको गिनवाए, नुकसान इसमें कोई नजर आ रहा है इस टेक्निक को यूज करने का? डबल फेड में नहीं कर सकते यूज. डबली फेड में भी कर सकते हैं यूज, हम देखेंगे कैसे. इज दैट क्लियर? इवन इफ द सिस्टम इज डबली फेड, अगर आप देखोगे ना हम यहाँ करंट या वोल्टेज को डायरेक्टली नहीं देख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ दिस इज डबली फेड, ठीक है, इफ देर इज अ शॉर्ट सर्किट हियर, impedance as seen by this point remains this impedance, because ये जो यहाँ पर 0 वोल्ट है ना, impedance हम कैसे डिफाइन करते हैं? वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट. दिस वोल्टेज इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. करंट फ्लो जो होती है ना वो यहाँ पर फ्लो हो रही है, लेकिन एट दिस पॉइंट सडनली द वोल्टेज गोज टू 0 बिकॉज यहाँ शॉर्ट सर्किट है. सो एनीवे इसके बहुत सारे मतलब कॉम्प्लिकेशंस है, वो हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे. मेन थिंग इज यहाँ अगर आप देख सकते हो ना, आई हैव टू यूज टू काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पावर सिस्टम. इन द केस ऑफ जो आपका नॉर्मल ओवर करंट रिले है, यूज ओनली द करंट इंफॉर्मेशन. इनफैक्ट जो हमारे पास नॉर्मल ओवर करंट रिले है उसमें खाली हम करंट के मैग्नीट्यूड इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं. यहाँ पर हमारे पास 2 काइंड्स ऑफ डिफरेंट इंफॉर्मेशन आपको चाहिए. यू नीड वोल्टेज इंफॉर्मेशन एज वेल एज करंट इंफॉर्मेशन. हम कैसे लाते हैं वो आगे हम देखेंगे, बट द मेन थिंग हियर इज यू रिक्वायर 2 independent sources of information about the power system, and these sources are completely different. ये नहीं है कि आपको 2 currents की information चाहिए, no, you need a current and a voltage. In other words, you need 2 completely dissimilar equipment. एक voltage sensitive equipment आपको चाहिए, एक current sensitive equipment आपको चाहिए. So that in turn means कि थोड़ा cost वगैरह आपका increase हो जाता है. दैट इज द रीजन वाई कि ये फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस ड्रिलिंग तो आप हर जगह यूज कर सकते हो, ये मैं घर में यूज कर सकता हूँ, लेकिन हम घर में अब कहाँ में आप करंट सेंसिटिव और वोल्टेज सेंसिटिव चीजें में बनाने बैठेंगे. सो दैट इज द रीजन वाई कि ये यूजुअली हम यूज करते हैं ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर. देयर आर सम अदर एप्लीकेशंस एज वेल, इंशाल्लाह वी विल स्टडी दोस, बट द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन फॉर डिस्टेंस प्रोटेक्शन इज फॉर प्रोटेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस. ठीक है, इज दैट क्लियर? एनी क्वेश्चंस अप टू नाउ? कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है? हेलो? नो सर. ओके, अब इसके डिस्टेंस प्रोटेक्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं. इंशाल्लाह वी विल स्टडी ऑल ऑफ दिस. वी हैव व्हाट इज नोन एज एन इंपीडेंस रिले, वी हैव अ रिएक्टेंस रिले, वी आल्सो हैव व्हाट इज नोन एज अ एडमिटेंस रिले, आल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज अ मोह रिले, क्योंकि यूनिट ऑफ एडमिटेंस इज मोह, यूनिट ऑफ इंपीडेंस इज ओम. सो बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं, वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, बट ये बेसिक प्रिंसिपल मैंने आपको बोला. I look at the voltage, I look at the current, and then I infer about the location of the fault as well as the extent of that fault. ठीक है? So ये बाद में देखेंगे ये क्या होता है. और differential protection, ठीक है? That is the third important paradigm. This is ये जो हमारे पास differential protection है ना, it is very commonly used for protection of transformers. It's also very commonly used in generator protection. ठीक है? It is also कम से कम अब काफी कॉमन हो गया है. It is also used for protection of जो loads हमारे पास होते हैं. Load का मतलब है मतलब it can be an industrial load. घर के अंदर भी कभी आपने सुना है what is an RCB? Hopefully घर में आपने देखा होगा, ये टर्म आपने सुना होगा, MCCB. Anyone? सुना है कभी MCCB क्या होगा? यस सर. इसका फुल फॉर्म पता है? नो सर. दिस इज मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर. ठीक है, जो घर के अंदर हमारे पास होता है ना, उसको नॉर्मली हम MCB भी कहते हैं, या उसको कभी कभी हम खाली CV भी कहते हैं, या ब्रेकर भी कहते हैं. आम जबान में हम कहते हैं स्विच बोथ या व्हाटएवर, या ब्रेकर बोथ. अगर आप घर में देखोगे, इफ देयर इज अ शॉर्ट सर्किट और एनीथिंग, this MCCB or whatever sometimes just called MCB, वो ऑपरेट करता है, वो ट्रिप करता है, करंट को ब्रेक करता है. फिर आपने देखा होगा उसको मैनुअली हमको करंट वापस कनेक्ट करनी पड़ती है. There is also an equipment which is known as RCCB. ये कभी सुना है आपने RCB या RCCB? It is also sometimes called RCD.
नो सर. नहीं सुना है? हेलो? नो सर. सो आपने वो एड वगैरह देखे होंगे ना, उसमें मतलब वो जो वो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के एड होते हैं, वो मतलब वो बेचारा शक जाता है, टच करता है तो मुझे शॉक लगा, इसको वो बगाल ना वो खड़े हो जाते हैं, या वो उसका मुंह काला हो जाता है, बचपना काश मैंने पैसे नहीं बचाए होते, मैंने क्रैब ट्री क्या का आरसीबी लगाया होता, या मैंने हैवल का आरसीबी लगाया होता. आपने एड वगैरह तो कम से कम देखा होगा. दिस आरसीबी जो होता है ना, ये बहुत ही कॉमनली यूज, अब मतलब पहले जमाने में घर में यूज नहीं होता था, बट इंक्रीजिंगली जो नए नए हमारे घर बन रहे हैं वहां पर हम आरसीबी यूज करते हैं. This RCB is basically for, again, what can I call it? It is for protection of human beings. आपको शॉक ना लगे उसके लिए हम ये यूज करते हैं आरसीबी. दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशियल प्रोटेक्शन. हम सब डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप अभी घबराना नहीं है. क्या नाम इमरान खान, आपने घबराना नहीं, ठीक है? सो anyway, this RCB, by the way, is residual current circuit breaker, or CCB. ठीक है, यह है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर. दिस इज रेजिड्यूअल करंट सर्किट ब्रेकर. एनीवे, in power systems, the most important application is in protection of transformers, in protection of generators, as well as in protection of bus bars. मुश्तिक मोहम्मद, जो हमारे बस बार्स होते हैं उनकी प्रोटेक्शन में भी बहुत ही कॉमनली यूज किया जाता है जनरेटर, ये सॉरी डिफरेंशियल प्रोटेक्शन. ठीक है. सो इसका देखो आइडिया बहुत ही आसान है. Fault within an electrical equipment would cause the current entering it to be different from the current leaving it. यहाँ पर आप देखो, इसने क्यों नहीं डायग्राम कोई बनाई है? ओके, लुक एट दिस सिस्टम. ठीक है, लेट्स अज्यूम दिस फॉल्ट इज एब्सेंट. यहाँ पर ये फॉल्ट नहीं है. ठीक है. सो अंडर नॉर्मल कंडीशंस, यानी कि नो फॉल्ट कंडीशंस, अगर हम केसीएल लगाएंगे, दिस करंट प्लस दिस करंट इज इक्वल टू जीरो. इन अदर वर्ड्स, ये जो आपके पास ये वाली करंट है और ये वाली करंट है ना, दे आर एग्जैक्टली द सेम, खाली उसमें साइन फर्क है. सो आई एस इज इक्वल टू माइनस आई आर. ऑन द अदर हैंड, इफ देर इज अ फॉल्ट करंट, so what happens is that this current and this current are no longer same, but their sum is equal to the fault current. Is that clear? So ये basic हमारे पास idea है. I will go back to this here. So fault अगर होता है ना किसी equipment के अंदर, जो current enter कर रही है और जो current leave कर रही है आपके equipment को under fault conditions, those are not same, those are dissimilar. Is that clear? ये dissimilarity हम इस्तेमाल करते हैं. So it is also a kind of a modified overcurrent protection. Overcurrent protection में हम fault current use कर रहे हैं. यहाँ पर हम difference of currents use कर रहे हैं. Incoming और outgoing current के बीच में फर्क कितना है, उसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं. Is that clear? Hence the word differential, difference हम use कर रहे हैं. So anyway, so it is based on the fact that any fault within an electrical equipment, या आपके पास कोई piece of electrical equipment है, this is incoming current and this is outgoing current. ठीक है. This is say I1 and this is I2. If there is no fault, incoming and outgoing currents are the same. ठीक है. If there is a fault, incoming and outgoing currents are not the same. So अगर मैं इन दोनों करंट्स को कंपेयर कर रहा हूं, कंपेयर करने का मतलब यह है कि मैं ये, instead of looking at current, I am looking at difference of currents. Hence the word differential protection. बहुत सारी एप्लीकेशन में मैं मैग्नीट्यूड इंफॉर्मेशन यूज करता हूँ, यानी कि ये जो मेरे पास I1 एंड I2 है ना, उनके बीच का जो डिफरेंस है उसके मैग्नीट्यूड का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ. कभी कभी हम देखेंगे इन सम एप्लीकेशंस वी आल्सो यूज द फेज इंफॉर्मेशन. फेज इंफॉर्मेशन का मतलब है व्हाट इज द फेज ऑफ I1, आई कंपेयर दैट विद द फेज ऑफ I2. वी विल सी लेटर ऑन कि अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, फॉर सर्टेन इक्विपमेंट, फॉर सर्टेन फॉल्ट कंडीशंस, द फेजेस आर आल्सो अफेक्टेड. or we can use both as well as current magnitude as well as phase information. हम fault के कम से कम होने ना होने का को determine कर सकते हैं. ठीक है. So okay, it is an attractive option if both the ends of the apparatus are located near each other. For example, इसलिए अगर आप देखोगे जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, जनरेटर होता है, बस बार्स होते हैं,
घर के अंदर हमारे पास जो तारे होती है ना, उनकी लोकेशन बहुत है, मतलब क्लोज टू ईच अदर, इनकमिंग एंड आउटगोइंग नजदीक होता है. ऑन द अदर हैंड, लुक एट अ ट्रांसमिशन लाइन. दिस इज एन इनकमिंग पॉइंट ए एंड दिस इज एन आउटगोइंग पॉइंट बी. इनके बीच में जो सेपरेशन है ना, मे बी इट कैन बी 100 किलोमीटर, इट कैन बी 200 किलोमीटर, जो आपके पास लाइन सेक्शंस होते हैं. दैट इज द रीजन वाई कि मैंने इसलिए यहाँ पर ये नहीं यूज किया कि ट्रांसमिशन लाइन में भी कॉमनली यूज किया जाता है. अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस, ट्रांसमिशन लाइंस, टू बी मोर प्रिसाइज, जो हमारे फीडर होते हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस, वहां पर भी एक काइंड ऑफ डिफरेंशियल प्रोटेक्शन हम यूज कर सकते हैं. We study all that in detail, but it's not very commonly used there outside of distribution networks. Usually, इसका सबसे कॉमन एप्लीकेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जनरेटर, ट्रांसफर, बस बार. ठीक है. सो बट इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड फॉर ट्रांसमिशन लाइन. सो हम देखेंगे. यहाँ जो मैंने आपको बोला था, हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों करंट्स को. इफ दे आर डिसिमिलर, वी इशू अ ट्रिप कमांड टू द सर्किट ब्रेकर. सो अगेन, बिकॉज ए एंड बी में बी सेपरेटेड बाय, आई डोंट नो, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स, उनको कंपेयर करने के लिए आपको पता होना चाहिए ना एट वन लोकेशन की ये IS एंड IR कितने हैं. एक जगह आपको पता होना चाहिए. So there has to be some kind of a communication channel between these 2 points. So that is the reason why ये काफी expensive proposition है for the case of a transmission line. But it is extremely accurate and its zone is demarcated by cities. ये 2 points हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे इनकी importance क्यों है, ये क्यों होता है ऐसा. But at the moment खाली मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारी differential protection है ना, इससे ज्यादा accurate, इससे ज्यादा reliable कोई protection system नहीं होता. ओवर करंट इंपीडेंस वगैरह कुछ भी इसके सामने नहीं. इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ क्रिस्पनेस ऑफ योर प्रोटेक्शन स्कीम, इन टर्म्स ऑफ मतलब एक्यूरेसी ऑफ योर प्रोटेक्शन स्कीम, देयर इज नो बीटिंग डिफरेंशियल प्रोटेक्शन. इससे बेटर कोई चीज आज तक नहीं बना पाए हम. सो क्यों है वो, इंशाल्लाह विल सी लेटर ऑन. देन वी हैव टैप ट्रांसमिशन लाइन. बहुत ही अनयूजुअल है, मतलब यूजुअली टैपिंग हम नहीं करते ट्रांसमिशन लाइन की, लेकिन कभी कभी की जा सकती है. फॉर एग्जांपल इन अ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. ठीक है. सो फॉर एग्जांपल ये डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की बस बार है. ठीक है. यहाँ पर एक टैप जा रहा है, क्या नाम है इसका, मतलब एक लोड की तरफ एक टैप जा रहा है, एक लोड की तरफ. ये कभी कभी हम कैसे यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल रूरल एरियाज में आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है कि जो एग्जिस्टिंग लाइन है ना, उसको खाली तार लगा के जो दूसरा मोहल्ला है उसको सप्लाई देंगे. बट आफ्टर सम टाइम सीधे तार ऐसे नहीं जोड़नी होती, ये वो घर का नहीं है, आप तारे जोड़ोगे. यूजुअली इसके लिए भी हम डेडिकेटेड एक बस लगाते हैं, उसमें हमने अपने डेडिकेटेड फ्यूज वगैरह लगाने होते हैं. लेकिन कभी कभी वो जुगाड़, जिसको नहीं कहते हैं, जुगाड़ भी हम कर सकते हैं, टैपिंग हम कर सकते हैं मोमेंटरली, मतलब सॉरी टेम्पररली, जब तक हमारे पास पैसे वगैरह नहीं आ जाए, टाइम वगैरह ना मिले कि हम इसको भी अपना वो मतलब ना प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लगाएं. सो ये सिंपल है. अंडर नॉर्मल कंडीशंस सम ऑफ दीज थ्री करंट्स इज इक्वल टू 0. अगर यहाँ पर कहीं फॉल्ट है, सम ऑफ दीज थ्री करंट इज नॉट इक्वल टू 0. सो हम वो यूज इंफॉर्मेशन कर रहे हैं. देन वी कम टू द रियल थिंग, दैट इज ट्रांसफार्मर. ट्रांसफार्मर में अगर आप देखोगे, इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट आर नॉट द सेम. ट्रांसफार्मर में जो इनकमिंग करंट है I1, आउटगोइंग करंट है I2, उनके बीच में रिश्ता क्या है? इट इज लाइक दिस, I1 by I2, this is equal to N2 by N1. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस लेट्स अज्यूम, अब रैंडमली मैं अज्यूम यहां कर रहा हूं, दिस इज LV साइड and this is HV side. HV side का मतलब है number of turns on this side, N2 is greater than N1. I1 बड़ा है कि I2 बड़ा है? लो वोल्टेज साइड की करंट बड़ी होती है कि हाई वोल्टेज साइड की करंट बड़ी होती है? Anyone? लो वोल्टेज साइड. हाँ, जाहिर सी बात है, LV साइड की करंट अगर आप देखोगे, even from this equation, it is always larger than the HV side current. Is that clear? For example, मोहल्ले का ट्रांसफार्मर हो सकता है. अगर आप HV साइड 11 kV साइड पे लाइन करंट देखोगे ना, इट्स वेरी स्मॉल कंपेयर टू जो लाइन करंट आपको फ्लो हो रही है ना ऑन द 400 वोल्ट साइड, जो अल्टीमेटली आपके घरों में जा रही है. रीजन इज बेसिकली ट्रांसफार्मर इज अ कांस्टेंट पावर डिवाइस. V1 I1 is V2 I2. If you increase voltage, current has to go down. So anyway, ये जो हमारे पास सिस्टम है, इसमें अंडर नॉर्मल कंडीशंस इनकमिंग एंड आउटगोइंग करंट्स आर डिसिमिलर. तो
जो प्रॉब्लम क्रिएट की थी ना ट्रांसफॉर्मर में, उसका सोल्यूशन भी ट्रांसफॉर्मर ही करता है. सो फॉर एग्जांपल मैं रैंडम कोई मतलब एग्जांपल ले रहा हूं. लेट्स अज्यूम दिस n1 इज 1, अगेन कभी 1 नहीं होगा, एंड लेट्स अज्यूम i2 इज 2. ठीक है? इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर और नॉट? Yes, अब sir. देखो क्या, हाँ क्या क्या क्वेश्चन है? हेलो, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं. ओके. मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, ये जो हमारा ट्रांसफॉर्मर है ना, इट इज अ पावर ट्रांसफॉर्मर. n1 by n2 आर रिलेटेड बाय दिस इक्वेशन कि n2 इज 2 times n1. इज दैट क्लियर? यहाँ पर ट्वाइस है आपकी वोल्टेज ऑन द HV साइड कंपेयर टू द LV साइड. इज दैट क्लियर? करंट के बीच में क्या रिश्ता होगा? Half. हाफ. जाहिर सी बात है. सो जो हमारे पास I2 है, if voltage on the secondary side is twice voltage on the primary side, current is only half as much. Current is आधा of I1. ठीक है? Or I can write it like this: I1 is twice I2. ठीक है? Is that clear? Is that clear or not? ठीक है? सो अब आप देखो, ये जो हमारे पास करंट इंफॉर्मेशन है ना, वो हम ये जो करंट सेंसिंग इक्विपमेंट को डायरेक्टली फीड नहीं कर रहे हैं, हम उसको फीड कर रहे हैं यूजिंग सम अदर ट्रांसफॉर्मर. ये जो ये सिंपल जैसा गोल है, इट इज नॉट एन इंडक्टर हियर. ये एक ट्रांसफॉर्मर है, ये एक और ट्रांसफॉर्मर है. बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, हालांकि अगर आप देखोगे ऑन ऑन दिस साइड जो पावर सर्किट है, द करंट्स अंडर नॉर्मल कंडीशंस आर नॉट सेम, बट इसका एक एक ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होगा, इसका कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होगा. जो यहाँ पर ये करंट्स फ्लो हो रही है ना, आई विल कॉल देम, दिस इज I1 dash, and this current here is I2 dash. Again, the important thing is look at the dot convention. Dot convention क्या कहता है? अगर on one side dot के अंदर करंट जा रही है, on the other side dot के बाहर करंट जा रही है. So on this side I1 is entering the dot, on the other side the secondary current has to exit the dot. In the same way, on this side this current I2 is entering the dot, on this side current is exiting the dot. So under normal conditions, under normal condition का मतलब है there is no fault anywhere. This I1 dash and I2 dash are the same. वो हम कैसे करेंगे? By using appropriate transformation ratio. ठीक है? इसका कुछ होगा, इसका कुछ और होगा. So for example, क्योंकि यहाँ पर करंट ज्यादा है I1 को compared to I2, ठीक है? जब हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो लगाएंगे ना यहाँ पर, हमको इस करंट को स्टेप डाउन करना है, बिकॉज दिस करंट इज ट्वाइस कंपेयर टू दिस. सो करंट को स्टेप डाउन करने के लिए हमें वोल्टेज को स्टेप अप करना होगा. सो ऑन दिस सेकेंडरी साइड ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मर जो हम सेंसिंग के लिए यूज कर रहे हैं, उसके नंबर ऑफ टर्न्स होंगे ट्वाइस एज मच एज ऑन दिस साइड. वो हम डिटेल में देखेंगे. सो दिस I1 डैश फ्लोज लाइक दिस, फिर यहां से वापस आता है. अंडर नॉर्मल कंडीशंस जो हमारे पास ये जो गोल जैसा है ना करंट सेंसर जिसको लिखा है, उसको कोई करंट नजर नहीं आती है, बिकॉज इट इज कनेक्टेड ऑन दिस पाथ. अंडर नॉर्मल कंडीशंस ये जो डॉटेड लाइंस अगर आपको नजर हो रही होती है ना, वहां से करंट फ्लो होती है. इज दैट क्लियर? बट इफ यू हैव एनी अबनॉर्मेलिटी, सॉरी, अबनॉर्मेलिटी का मतलब है मे बी यहाँ फॉल्ट आ गया, लाइक दिस फॉल्ट टू ग्राउंड. इज दैट क्लियर? Because of this, this I1 and I2 are no longer related by this simple equation. I1 by I2 is N2 by I1. ये जो करंट I1 है ना, उसका कुछ हिस्सा जा रहा है आपके ट्रांसफॉर्मर में. वो भी डिपेंड करता है कि फॉल्ट अगर शॉर्ट सर्किट है तो कोई हिस्सा नहीं जा रहा है. सो फॉर एग्जांपल देयर इज अ शॉर्ट सर्किट ऑन द प्राइमरी साइड. शॉर्ट सर्किट का मतलब है द वोल्टेज डिसअपियर्स. If the voltage disappears, the secondary voltage disappears and the current on the secondary side also disappears. So यहाँ पर ये करंट कुछ नहीं है, ये गायब करंट हो जाएगी. Only current is flowing like this. वो यहाँ से जाके आपके सेंसर के थ्रू वापस आएगी. So this sensor can be actuated. Is that clear? We'll study all this in detail. In the same way, हमारे पास है protection of bus bars. Same idea है. अगर आपके पास कोई external fault है, मतलब ये है आपके पास bus bar. If the fault is external, even then, अगर आप KCL यहाँ apply करोगे ना for this bus bar,
IA plus IB plus IC plus ID plus IE is equal to 0. On the other hand, if there is an internal fault, the sum is not equal to 0. So ये आपका बस बार ऑपरेट हो सकता है. In the same way, जो हमारे पास ये ट्रांसफॉर्मर है ना, ये एक यहां से लेकर यहां तक, let's call this point P and let's call this point Q. If the fault is between point P and point Q, your sensor is able to operate. The moment the fault is somewhere here, for example at this point, then again, चूंकि from this point to this point खाली बीच में एक ट्रांसफॉर्मर है, वहां पर I1 and I2 are the same on per unit, और I1 and I2 are directly proportional. ये आपका जो सेंसर है ना, एक्सटर्नल फॉल्ट्स को सेंसिटिव ही नहीं है. यहां पर भी अगर आप देख सकते हो, फॉल्ट अगर बस बार से दूर हो जाएगी कहीं पर, फिर वो कितनी भी बड़ी फॉल्ट ना हो, आपका जो ये डिफरेंशियल प्रोटेक्शन स्कीम है ना, ऑपरेट ही नहीं करेगा, क्योंकि उसको कोई करंट ही नजर नहीं आएगी ना, वो ऑपरेट करता है सम ऑफ करंट्स के ऊपर. इज दैट क्लियर? अलजेब्रिक सम. अगर आप यहाँ देखोगे, लुक एट द डायरेक्शन ऑफ करंट्स, हम डायरेक्शन सबको रेफरेंस ले रहे हैं इनटू द बस. अगर वो नॉन जीरो है तब वो ऑपरेट करेगा. फॉल्ट अगर बस बार के बाहर है, फिर कयामत भी हो जाएगी, आपका जो ये डिफरेंशियल रिले है ना, इट विल नॉट ऑपरेट. एटलीस्ट आइडली स्पीकिंग शुड नॉट ऑपरेट. ठीक है? सो ये मैंने थोड़ा बहुत आपको पढ़ाया. अब इसके बाद है लेक्चर नंबर 3, दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ ओवरऑल सिस्टम. इंशाल्लाह वी विल स्टडी दैट इन द नेक्स्ट क्लास. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन आप प्लीज पूछ सकते हो अभी. अब 2-3 मेरे पास स्टूडेंट्स आए थे, सर बुक कौन सी है? कोई भी बुक आप देख लो इसमें. फॉर एग्जांपल मे बी आई विल राइट इट हियर. अब see. Hopefully this is visible. So you have one book known as Pathankar. ठीक है, ये बुक आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी ऑनलाइन. ठीक है, इट्स अ गुड बुक, देख लो आप. एक और बुक आपको लाइब्रेरी में मिल जाएगी, विश्वकर्मा एंड आई गेस बद्री राम उसका नाम. दिस इज ऑल्सो अ गुड बुक, अच्छी बुक है, इसको आप स्टडी कर सकते हो. लाइब्रेरी में एक और आपको बुक मिल जाएगी, से शायद उसका नाम है, से. नेम ऑफ बुक इज आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रोटेक्टिव रिलेइंग शायद. हाँ, दिस इज अ गुड बुक, इवन दैट इज ओके. इनमें से कोई भी बुक आपको मिलेगी, यू कैन स्टिक विद दैट. इसमें कोई ये नहीं कोई एक बुक बुरी है, एक बुक अच्छी है. एवरीथिंग इज कवर्ड. अब ये है कि मतलब जो ये टिपिकली बुक्स होती है ना, इसमें मतलब डिटेल में नहीं दिया होता है, मतलब इन द सेंस कि यूजुअली डायग्राम बनाए के होगी, लेकिन उसकी वो कहाँ से आई, किधर से आई, वो हम मतलब जाहिर सी बात है क्लास में देखेंगे. सो इफ यू आर एबल टू गेट योर हैंड्स ऑन एनी ऑफ दिस बुक्स, प्लीज आप देख लो. एनी क्वेश्चंस? हेलो हेलो, कोई सवाल? No, sir. No, sir. No questions. What about anyone else? Is कहाँ गया वो? शयान है यहाँ पर? शयान, हेलो, शयान बॉन्डे, Yes, sir. मोहसिन, do you have any questions? और कोई सवाल है आपको? No, sir. Okay, so then inshallah we'll meet tomorrow at शायद कितने बजे आपकी क्लास है? जितने बजे भी हो इंशाल्लाह टाइम पे मिलेंगे. ठीक है? Okay, thank you so much.